Hello everybody, this is Kashi and from today we'll be starting a series where we'll do every chapter of GC Leong, one chapter every day. Will be a quick revision of the chapter. It will help all the UPSC aspirants who are preparing for either CSC or CAPS or CDS. So starting from today, the chapter 1 is the Earth and the Universe. So first you have to understand what are what all things that are present in the universe. So when we look at the sky, we see stars. And we feel like these stars are equally scattered all over the places, but this is not the case. The stars are not scattered in regular spaces, they occur in clusters. And these clusters are known as galaxies or nebulas. So each galaxy they may contain hundreds and thousands of millions of stars. Earth has its own galaxy. The name of the galaxy is the Milky Way, and it has around 1 lakh million stars. The stars appears usually small to us, but this is not the case. They are thousands, or the correct term will be million times greater than the size of the Earth. And just to get the idea how big the stars actually is, the light from the nearest stars travels at the speed of light, and it takes something like 4 years to reach us. Can you imagine 4 years? And if you compare it with that of the sun, it takes around 8 minutes, and from the moon, it just takes around second. So this gives us a clear idea of how big, how vast the universe is. So now the topic comes up the solar system. The solar system it has a sun and nine. No, actually this is the old book. Now we have just 8 planets. The Pluto is not considered as planet as of now. So they are made up of condensed gases and other lesser bodies. We just have to take an idea about the solar system. The questions have not been asked from directly, not from the name of the planets and things. You just have to remember how they are positioned. So there is this thing, sun, that is so much bigger, like 3 lakh times as big as the Earth. And we have to remember the location of the planets for our understanding. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. All of them except Uranus moves from west to east direction around the Earth, but Uranus moves from east to west direction. So they are made up of different things. They have their natural satellites. Earth has one single natural satellite, that is Moon. Okay, so now the Uranus around the Sun in clockwise direction from east to west, and it has around 5 satellites revolving around it. Yeah, yeah. Okay, now the shape of the Earth. The shape of the Earth is in general, we could say it's spherical, but it is not actually spherical, also not completely spherical. So we have given it a new name that is geoid, earth shaped, okay, because it is a little flattened from both sides of the poles. So now there are evidences earlier it has been believed that the earth is a flat surface. तो ऐसा कहा जाता था कि एक तरफ से अगर चलना शुरू किया तो एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से नीचे गिरा जा सकता है पर देर because some experiments, some observations have been made जिसने प्रूफ किया कि अर्थ एक स्पैरिसिटी शेप है उसका एक सर्कुलर शेप है जैसे कि एक सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ से ये प्रूफ किया गया दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे प्रूफ किया गया जैसे कि अगर ये फ्लैट होती तो एब्रेट ड्रॉप हो जाता टेबल लाइक अर्थ अगर होती तो पर ऐसा नहीं है एक सर्कुलर ऑरिजिन है शिप का विजिबिलिटी से ये पता किया गया कि अगर एक फ्लैट सरफेस होता है जिसपे शिप चल रही है तो वो काफी दूर तक अपन को दिखाई देती पर असली में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो शिप जब चल रही है तो कुछ देर जाने के बाद उसका विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हुआ मतलब जैसे जैसे पूरा शिप दिख रहा था उसके बाद सिर्फ उसका फ्लैग दिखने लग गया और इस तरीके तो फिर ये पता चला गया कि वो इस तरीके से मूव किया जा रहा है जैसे कि इसका एक ये पिक्चर दे रखा है ये रहा जैसे ये जो स्फेरिकल अर्थ का पिक्चर ये धीरे धीरे अगर ये सरफेस गोल है इस वजह से इसका जो दिखना था वो धीरे धीरे कम हुआ तो हमको पता चला कि इस तरीके से चौथा सनराइज और सनसेट से ये पता चला क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस होता तो पूरे अर्थ पे सेम सनलाइट पड़ती पर ऐसा नहीं है किसी जगह पर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है किसी जगह पे सनराइज
कम, मतलब सनलाइट कम हो रही है। सनराइज और सनसेट का टाइम भी डिफरेंट है फॉर डिफरेंट प्लेसेस के लिए। उसके बाद लूनर एक्लिप्स से अपन ये कहा जा सकता है कि अर्थ गोल है। ये इससे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब अपन देखते हैं कि लूनर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है, तो वो गोल एक स्ट्रक्चर होता है जो सन के ऊपर आता है ना। तो इससे अपन को पता चल रहा है। और एक प्लानिटरी बॉडी स्फेरिकल, इससे पता चल, क्योंकि जो आसपास अपन ने बाकी सब चीजें ऑब्जर्व करी, दे ऑल आर सर्कुलर आउटलाइन विच एवर एंगल you see them. So they are strictly spared. Earth by analogy cannot be an only exception. दूसरा, ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड और कर्व्ड अर्थ। जब जब इंजीनियर्स ने कुछ बना रहा हो पोल्स, अगर जब उन्होंने अर्थ में गाड़े, तो उन्हें पता चला कि सेम साइज के पोल्स जब सेम सरफेस पे गाड़े जा रहे हैं तो उनका हाइट डिफरेंट आ रहा है। पर अगर ये पोल फ्लैट होता, अगर अर्थ फ्लैट होती, तो पोल्स का हाइट सेम होना चाहिए था। पर क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, तो हाइट जो है वो पोल्स का वो डिफरेंट आएगा। इससे पता चला। क्योंकि एरियल फोटोग्राफ्स अभी जो लेटेस्ट अपने पास है वो है फोटोग्राफ्स, जब स्पेस पे गए गए और फोटोज खींची गई तो पता चला कि गोल है। इन सब चीजों से प्रूफ हुआ उसका शेप। उसके बाद आता है अर्थ का मूवमेंट। अर्थ जो है वो दो तरीके से मूव करती है। एक तो वो रिवॉल्व करती है, और एक वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ये अर्थ है, ये सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है। और दूसरा है रोटेशन, जो ये अर्थ है ये खुद के अराउंड रोटेट करती है। इट रोटेट्स एंड इट रिवॉल्व। जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो लेती है 365 1/4 days। इतना टाइम वो लेती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। उससे क्या डिटरमाइन होता है, ईयर, कि एक साल में वो कर रही है, और सीजन। पर जब वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी एक्सिस पे जब वो रोटेट कर रही है, इससे होता है डे और नाइट, ये दोनों चीजें। ठीक है। When the earth rotates on its axis, only the portion of earth's surface comes into the ray of the sun and experience daylight। other portion नहीं करता, तो इसकी वजह से डार्कनेस होता है सनराइज सनसेट भी। अब अर्थ के रिवॉल्यूशन, वो अर्थ रिवॉल्व करती है एक इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। ठीक है। उसका स्पीड दे रखा है, ये है 66,600 एमपीएच में। वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। 365 1/4 days लेती है, पर एक्चुअली 1/4 days अपन शो नहीं कर सकते क्वार्टर ऑफ अ डे कैलेंडर के अंदर। दैट्स व्हाई वी टेक इट एज 365 days एंड एक्सटेंडेड डे फॉर एवरी 4 year, जिसको कहते हैं लीप ईयर। अब वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड लाइट, ऐसा भी अपन ने फील किया है कि जो लेंथ ऑफ डे है वो दैट इज डिफरेंट, राइट, दैट इज नॉट द सेम फॉर ईच पार्ट। द अर्थ का जो नॉर्थन पोर्शन है उसमें अलग है, साउथर्न पोर्शन में अलग है। ये अपन ने एक अर्थ ड्रॉ किया, ये नॉर्थ पोल ड्रॉ किया, ये साउथ पोल ड्रॉ किया। ये दोनों है 90 डिग्रीज पर। अर्थ का ये ले लिया इक्वेटर, दैट इज एट 0 डिग्री। दिस इज 66 1/2 degree, that is Arctic line, and this is also at 66 1/2 degree south. Now there is other two lines, that is Tropic of Cancer and there is Tropic of Capricorn. These, ये 1 2 3 4 5 and these poles. These are the important things that you have to remember about Earth. अगर ये पता होगा तो सब पता चल जाएगा। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसमें विंटर्स में क्या होता है कि डार्कनेस होती है पूरे दिन के लिए, होल डे। अब एक्चुअली ये जो अर्थ है ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये जो इस तरीके से जो है ये 90 नहीं है, ये टिल्टेड है। ये है 66 1/2 डिग्री पे, ये अर्थ टिल्टेड है। इसकी वजह से जो सन का जो रेज उसके ऊपर पड़ता है, तो एक ऐसा पोर्शन है, ये आर्टिक से, ये जो आर्टिक सर्कल है इससे लेकर नॉर्थ के बीच में एक दिन ऐसा आता है यहाँ पर आर्टिक सर्कल पर 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर क्या होता है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती नहीं है, पूरे दिन यहाँ पर अंधेरा रहता है, दैट इज डार्कनेस रहती है। और इसके इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है उसके अंदर क्या होता है कि 6 महीने तक, फॉर हाफ ऑफ द ईयर देयर इज डार्कनेस। दिस ऑल इज हैपनिंग इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द अर्थ।
ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स के अंदर डार्कनेस रहती है होल डे 22 दिसंबर पे, और आर्टिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल के बीच में हाफ ईयर तक डार्कनेस रहती है. दिस इज रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स्ड इन साउदर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ये सर्कल से लेकर साउदर्न पोल तक, इस पूरे पार्ट में हाफ ईयर तक सन रहता है, पूरा टाइम सन रहता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स के अंदर एज वी गो नॉर्थवर्ड्स द आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टेडली इंक्रीजेस. आर्टिक सर्कल 66 1/2 नॉर्थ डिग्री पर द सन नेवर राइजेस एंड द डार्कनेस फॉर द होल डे मिड विंटर 22nd. ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि मिड विंटर 22 दिसंबर को कौन सी साइड के अंदर, आइदर नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड के अंदर पूरा दिन डार्कनेस रहती है. और आर्टिक सर्कल नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होते हैं नॉर्थ पोल तक, हाफ द ईयर विल हैव डार्कनेस. समर के अंदर एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो रिवर्स हो जाती है. तो आर्टिक सर्कल में सन कभी सेट नहीं होता. 21st जून देयर इज कंप्लीट 24 पीरियड ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट इन समर. आर्टिक सर्कल, इसको ये भी एग्जाम में पूछा गया है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. आर्टिक सर्कल को कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. At the North Pole, there will be 6 months of continuous daylight. Okay, ये जो मैंने डायग्राम बना कर आपको बताया, ये सेम डायग्राम है. ये आपको बता रहा है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व और रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो कि डार्कनेस में रह रहा है आधे साल तक, और आधे साल तक ये इस तरीके, ये आधे साल तक डार्कनेस में रह रहा है, और यहाँ पर इस तरफ ये आधे साल सनलाइट रह रही है यहाँ पर. इवोल्यूशन ऑफ द इट अफेक्ट्स द सीजन लेंथ ऑफ द डे. अगर वो 90 डिग्री होता तो सेम लेंथ होती, पर वो 90 डिग्री नहीं है, इसलिए अलग अलग से लेंथ. अब ये भी याद रखना पड़ेगा, ये इक्विनॉक्स क्या होता है. इक्विनॉक्स वो टाइम होता है जब इक्वल डे और इक्वल नाइट अर्थ को मिलती है. ये दो डेट्स है, तो ये डेट्स वेरी कर सकती है, क्योंकि जो वो एग्जैक्टली 365 डेज है नहीं, वो वेरी करता रहता है, इसलिए ये डेज भी एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं. अब है समर सॉलिस्टिक, ये भी याद रखना है, और विंटर सॉलिस्टिक याद रखना है. ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये इन्होंने इक्वेटर बना रखी है 0 डिग्री पर, 23 डिग्री नॉर्थ पर. और विंटर सॉलिस्टिक और समर सॉलिस्टिक. अब ये याद रखना पड़ेगा, सदर्न हेमिस्फीयर सेम प्रोसेस हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया. एल्टीट्यूड ऑफ मिड सन हो गया. वर्टिकली इक्वेटर पर ये भी पढ़ना है, द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन. ये क्या बोलता है, द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर फॉर 2 days each year. They are usually 21st March and 27th September. Date change हो जाती है. Okay. These 2 day इनको कहते हैं इक्विनॉक्सेस. यहाँ पर इक्वल लाइट होती है, बिकॉज these 2 day ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, क्योंकि जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड है अर्थ के, एग्जैक्टली ओवरहेड हो रहा है, इसकी वजह से. अब जब एक बार मार्च में इक्विनोक्स हो गया, उसके बाद जो अर्थ, जो सन है, जो नॉर्थन साइड मूव कर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर गया. तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गया, है ना, उसको बोलते हैं जून सॉलिस्टिक, समर सॉलिस्टिक. जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी. तो समझ आया सॉलिस्टिक क्या है, समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक. जब जो डे है that will have the longest day. The northern hemisphere will have the longest day and shortest night. What about 25th overhead? Tropic of Capricorn के जब ऊपर चला जाएगा, सर्दिन साइड में चला जाएगा, तो विंटर सॉलिस्टिक बोलेंगे. वहां पर उस टाइम उनके पास होगा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे. अभी याद करने का इजी तरीका क्या है कि अपन को पता है कि ये मानो पूरा अर्थ का 2D के अंदर मान लो यहाँ पे कहीं इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. तो इंडिया, अपन को पता है कि समर्स चल रहे होते हैं, कब जून टाइम में समर्स चल रहे होते हैं, तो डेज लंबे होते हैं, है ना. तो लॉन्गेस्ट डे यहाँ पर तब होगा, तो नॉर्दर्न पार्ट में लॉन्गेस्ट डे तब होगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होगा, तो ये हो जाएगा समर सॉलिस्टिक यहाँ पर. और इसके जस्ट ऑपोजिट होता है विंटर सॉलिस्टिक. तो अपन ऐसे एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है.
इसका इसमें एक और टर्म थी जो मैं स्टार्टिंग में बताना रह गया। एक होता है पेरिहिलियन, एक होता है एपीहिलियन। पेरिहिलियन और एपीहिलियन। पेरिहिलियन का मतलब होता है जो जब सन क्लोजेस्ट हो अर्थ के। एक्चुअली आई एम वेरी न्यू टू यूजिंग दिस पेन, दैट्स व्हाई द राइटिंग इज नॉट वेरी नाइस, पर आई गेट बेटर विद टाइम। तो पेरिहिलियन जब सन क्लोजेस्ट है अर्थ के, सबसे पास है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? प्रिय के सिमिलर है हिंदी में। तो प्रिय, वी कीप द पीपल हु आर प्रिय टू अस क्लोजर। सो क्लोज सन के जो सबसे क्लोजेस्ट अर्थ होगी वो है पेरिहिलियन। और दूसरा है एपीहिलियन जब अर्थ के सबसे फार्देस्ट हो सन, अर्थ के या फिर किसी भी और प्लैनेट के, पर अपन अर्थ के कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है। अब अपन ने जब ये अर्थ का डायग्राम पढ़ा था, ये याद रखना है ना, ये वाला डायग्राम बहुत काम आता है। ये है, एक इसको ड्रॉ कर, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, ये अपन ने आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल बना दिए, ये इक्वेटर बना दिया, ये बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 30 डिग्री 1/2 है, 33 डिग्री, सॉरी 33 डिग्री 1/2, 66 डिग्री 1/2 है, 66 डिग्री 1/2। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है। अब सीजन चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर। तो समर्स में सन हायर होता है इन द स्काई, विंटर के कंपैरिजन में ओवरहेड होता है, तो वर्टिकली अर्थ पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो स्मॉल एरिया पे पड़ रही है पर डायरेक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है समर्स में। तो समर्स आर वार्म। विंटर में ऑब्लिक्यू रेस पड़ रही है, मतलब डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही, इस तरीके से टेढ़ी रेस पड़ रही है। कमिंग थ्रू द एटमोसफेयर, तो उसके अंदर से कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है एटमोसफेयर में, इम्प्योरिटीज की वजह से, वाटर वेपर्स से। तो वो फेंटली ही पड़ती है और ग्रेटर एरिया पर पड़ती है, तो लिटिल हीट ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। तो there is a net gain in total heat received temperature in the shorter days, longer nights, इसकी वजह से ये है। अब डॉन और ट्विलाइट, ये दो टर्म्स है जो भी, इसका भी आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। अब डॉन का क्या मतलब होता है कि सुबह जब सनराइज हुआ है, जस्ट हुआ है, और जब वो पूरा डे लाइट पे फैल गया है, ये छोटे से टाइम पीरियड के बीच में जो ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज डॉन। और ट्विलाइट में जब सनसेट हो चुका है और पूरा डार्कनेस हो गया है, इसके बीच में ये जो टाइम पीरियड है, दैट इज ट्विलाइट। ओके। अब एक्चुअली अब ये इसके अंदर ये चीज पूछ रहा है कि टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। जब इक्वेटर पे जो डॉन और ट्विलाइट का जो टाइम है, दैट इज वेरी लेस इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सन जो है वो डायरेक्टली उसके ओवरहेड नीचे जा पा रहा है ना, द इक्वेटर। पर जब आप वहां पर हो, at the equator, the sun rises almost vertically, so the time it takes to pass to the twilight zone it shorter होगा than the temperature latitudes पर। Sun rises obliquely कर रहा है, तो टाइम टेकन, ये जो टी और डी, ये डी बना रखा है, ये जो टाइम है ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तो नहीं, पर कंपैरेटिवली ज्यादा ज्यादा है इन लैटिट्यूड्स पर एज कंपेयर टू एट इक्वेटर। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, vertical location of places on the globe. So there are two types of lines. That way, these are the imaginary lines that we made on the earth. This is equator, image line, equators. These are circular lines. They are forming a complete circle. As this is a 2D figure, I cannot show you. But these are the complete lines. Okay, these are known as latitude. Okay, and there are lines from pole to pole. They are half only. From pole to pole, these are lines that have been drawn. They are known as longitudes. Okay, these lines are known as longitudes. So these two lines are used to when these 2 points, like
Here, this line has been meeting. These are the pinpoint locations. We use these pinpoint locations to describe the location of a place. Okay, this is what it is saying. The longitude pinpoints at any place on the Earth's surface. Okay. Latitude, we have discussed angular distances from the Earth. They are parallel to the equator. Okay. They lie midway between the poles and they become smaller polewards क्योंकि यहाँ पर तो ये इतना बड़ा सर्कल कवर कर पा रहे थे वो तो छोटा होता जा रहा है ठीक है इक्वेटर 0 डिग्री पे नॉर्थ साउथ 90 डिग्री पे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया drawn at the interval of 1 degree. Precise location subdivided into अब ये 1 डिग्री और प्रिसाइज लोकेशन के लिए 1 डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में और 60 मिनट्स को अगेन डिवाइड करते हैं 60 सेकेंड्स के अंदर एग्जैक्ट बताने के लिए लोकेशन ओके एंड they are also angular distances from the prime meridian. Meridian is also another name for latitude. Sorry. Meridian is also another name for longitude. Longitudes को मेरिडियन भी कहते हैं अब अपन को ये पोल से पोल की तरफ ये लाइंस बनानी थी तो अपन को एक ऐसा लाइन लेना पड़ेगा 0 डिग्री जिसके रिस्पेक्ट में अपन बाकी बना पाएंगे तो अपन ने इस 0 डिग्री को बोल दिया प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन कह दिया इसको मान लिया 0 डिग्री जिससे तब बनेंगे अब ये प्राइम मेरिडियन 1884 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ उसको जीरो मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन कहते हैं ये कहाँ से पास करती है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नियर लंदन से और फिर टाइम मेरिडियन इसके हिसाब से अपन टाइम डिसाइड करते हैं बाकी सारी जगहों का ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड्स ये बनाया ये 0 डिग्री बना दिया ये यहाँ लंदन के पास से पास कर रही है अब ये इसके ईस्टवर्ड्स और इसके वेस्टवर्ड्स और लाइंस बना दी और इसके जस्ट पीछे जो बनेगा उस तरफ जो बन रहा होगा दैट इज 180 डिग्री अब इनका डिस्टेंस जो है यहाँ पर मान के चलते 69.1 जब पोल की तरफ होगा जैसे कि ये पोल है ये सर्कल है अब यहाँ पे तो बड़ा बड़ा है पर पोल के पास इनका जो डिफरेंस है वो स्मॉल ही होगा है ना क्योंकि वो पोल से निकल रही है ना ये लाइन इस वजह से ऐसे पहले लैटिट्यूड शॉर्ट वर्ड जैसे यहाँ पे भी लिखा है शॉर्टर पोल वर्ड हो जाता है ठीक है कन्वर्जिंग एट द पोल से क्योंकि लॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर जहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 69.172 माइल है और बाकी जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं पोल पे तो 0 माइल हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई इनका डिफरेंस नहीं आ रहा अब ये हेल्प करता है टाइम डिसाइड करने में दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दे डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटेड टू जीएमटी और ग्रीनविच मीन टाइम इसको वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड हो रहा है अब दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर 360 डिग्री पे 1 डे पूरा घूम रहा है 15 डिग्रीज पे 1 आवर तो रिमेम्बर कि जब वो 15 डिग्रीज मूव करेगी इसका मतलब है अपन मानेंगे कि 1 घंटा ज्यादा हो गया है जब वो ईस्ट वर्ड्स जाएगी तो उसमें टाइम जो है वो ऐड होगा टाइम इज एडिंग जब वो वेस्ट वर्ड्स जाएगी तब है ना टाइम जो है वो डिक्रीज होगा किससे ये ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड किससे हो रहा है 0 डिग्री से हो रहा है 0 डिग्री जो जीएमटी है ग्रीनविच मेरिडियन से पास हो रही है अपनी जो लाइन उससे अपन ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड्स नाप रहे हैं इसको कैसे समझा जा सकता है कि जो लंदन है वो अर्थ के मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में किस तरफ है इंडिया के रिस्पेक्ट में वेस्ट तरफ है ना यहाँ है लंदन और इंडिया उसके रिस्पेक्ट में ईस्ट साइड है ठीक है तो जब ईस्ट साइड जा रहे हैं जब लंदन में अगर नून है दोपहर की 12 बजे है और यहाँ पर कितना इंडिया में कितनी बजे होगी 5 hours 20 minutes ज्यादा है वो तो इंडिया में बजी होगी शाम की 5 बज के 20 मिनट वैसे ही इसके वेस्ट साइड कोई ले जैसे न्यूयॉर्क ले ले तो वहां पर जल्दी यहाँ नून है तो यहाँ हुई होगी सुबह इसको कैसे समझा जा सकता है यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है यू शुड कॉल ओके Yeah, if there is a noon in London, the local time of Madras, that is in India, it will be 5 hours 20 minutes ahead of London, that will be 5:20 p.m. पर जो न्यूयॉर्क के अंदर है वहां पे पूरा 50 मिनट बिहाइंड मतलब पहले होगा लंदन से वहां पे हुई होगी सुबह
तो ऐसे याद करा जा सकता है कि लंडनर्स जब लंच कर रहे हैं, इंडियंस विल हैव डिनर और न्यूयॉर्क्स विल हैव ब्रेकफास्ट, न्यूयॉर्कर्स will have breakfast. Okay, this is very helpful. Actually, it has been asked in CAPF and CEDS examinations also. It has been asked जैसे उन लोगों ने आपको अप्रॉक्स लोकेशन पता होना चाहिए, आपको अप्रॉक्स पता होना चाहिए कि अर्थ में कौन सी कंट्री किस जगह पर है। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछते, पर पूछते हैं कि it's either noon or they are doing breakfast or they are having lunch or they are having dinner. इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. It has been asked in previous year questions also. तो इसका आइडिया होना चाहिए. अब अपन को, जैसे अपन इंडिया में खड़े हैं, तो अपन को पता होना चाहिए ईस्ट साइड कौन सी है अपनी. ईस्ट साइड एक ही रहेगी ना कहीं भी खड़े होकर के. राजस्थान में खड़े तो पता है कि ईस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट्स है. सारा जैसे वेस्ट बंगाल ईस्ट के अंदर है ना. सारा जो ईस्टर्न स्टेट्स है, मिजोरम है, असम है, सभी नॉर्थ. एक्चुअली राजस्थान के तो सारे ही ईस्ट में हो गए. मध्य प्रदेश सब कुछ ईस्ट के अंदर हो गया. वेस्ट में हो गया, पाकिस्तान हो गया. तो इस तरीके से याद करना है अपन को. और इसके अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो याद होना चाहिए. ये तो 0 डिग्री है ना. ये 0 डिग्री पर अपन ने बनाए रखा है प्राइम मेरिडियन. इससे ईस्ट जाते रह रहे, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. पर एक्चुअली अर्थ तो गोल है. तो इसको अपन ये सीधा इस तरीके से बनाया जा सकता है. ये अपन ने बना दिया एशिया. ठीक है. ये यहाँ पर अपन ने बना दिया लंदन, जहाँ से आ रहा है. तो ये इस तरह से तो टाइम ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है. अब यहाँ पर आ गया अमेरिका. अब अमेरिका कहाँ होना है, इस तरफ होना चाहिए. तो एक ही बात है, अब फ्लैट सरफेस पे बना रहे हैं अगर अपन सर्कुलर को, तो अमेरिका इसी तरफ आ जाएगा. तो ये जो 180 डिग्री लाइन है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं. तो ये जैसे ही क्रॉस कर दी तो एक दिन बढ़ गया पूरा. यहाँ से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ये तो अपन को पता ही था. यहाँ पे कहीं इंडिया आया था तो 5 घंटे 20 मिनट बढ़ गया था. इससे आगे आगे जाता जा रहा है तो पूरा दिन बढ़ जाता है. दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही एक डे बढ़ जाता है. अब ये जो लाइन है, ये एक्चुअली इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स ए zigzag लाइन. क्योंकि जो यहाँ पर जगह है, जो प्लेसेस है, दे हैव डिसाइडेड देमसेल्व्स कि उनको एशियाटिक टाइम के अकॉर्डिंग रहना है या अमेरिकन टाइमिंग फॉलो करनी है. तो उन्होंने ये खुद डिसाइड किया है. देखिए, that this is important. Okay, cognitive time management, that is important. Question has been asked in standard times and time zone. अब कंट्रीज इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कभी कभार एक टाइम जोन फॉलो नहीं कर सकती, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन टाइम. पर इंडिया ने तो एक ही टाइम जोन फॉलो कर रखा है, GMT है ना. जो अपना टाइम पूरे इंडिया में अपन सेम क्लॉक पे फॉलो करते हैं. पर जो बड़ी कंट्रीज है, जैसे रशिया है, चाइना है, इनके पास और टाइम जोन्स है. यहाँ मेंशन किया हुआ होगा. द इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर रखा है मेरिडियन 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट फॉर स्टैंडर्ड टाइम विद 5 आवर्स, विच इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. मद्रास को उसने 5 आवर 20 मिनट्स वहां पे लिखा था. पर इंडिया ने जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन फॉलो कर रखा है, जो मान रखा है, जो कि 5 आवर 30 मिनट्स अपन मानते हैं. वो लंदन से आगे है. Okay, 24 standard times were divided at the whole world. The whole world is divided in 24 standard time zone. ठीक है. 1 hour at a time. अपन starting में information पढ़ ली थी. 15 difference time zone. Larger countries है, जैसे USA है, USSR है, ग्रेट. उसका दूसरा जैसे कि टाइमिंग है. USSR अभी रशिया है, लार्जेस्ट कंट्री है. 165 डिग्रीज है इसके अंदर. उतना ज्यादा कवर करती है कि 165 डिग्रीज इसके अंदर आ जाती है. तो उसके अंदर एक 11 टाइम जोन इन लोगों ने बना रखी है. ठीक है. बोथ कनाडा यूएसए हैव 5 टाइम जोन. दैट इज things that you have to remember. The first, okay, this is North America. International dateline, we have discussed the international dateline where the date changes by exactly 1 day when it is crossed. मैंने आपको थोड़ा सिंपलर करके दिखा दिया. दिस इज द लाइन, दिस इज नॉट स्ट्रेट. ओके, दिस द लाइन. दिस इज फ्रॉम एशियाटिक टू अमेरिका. Okay, that's all. That's all for this chapter. Thank you all for joining. And if you have any doubts, please feel free to leave it in the comment section. I will be more than happy to join, more than happy to answer all your questions. Also, from the next video, I'll be adding the previous year questions. Today, I didn't get the time. So I just told you about the questions that have been asked.
And in the next video onwards, we'll add that and we'll try to solve it in the class also. So what we have realized. So thank you. Thank you everyone.